Hello everyone, I am Kapil Garg from Applied Science Department. Today we are going to discuss about the free, forced and resonant vibration. So firstly, vibration in mechanical system. Vibrations refer to oscillations or repetitive motion of a body or system about a stable equilibrium position. These can be classified into free, forced and resonant vibration based on the nature of forces acting on the system. There are three kinds: free, forced and resonant vibration. Firstly, we will discuss about the free vibrations. Free vibrations occurs when a system oscillates under the influence of its own internal restoring force after being displaced from its equilibrium position without any external force being applied during the oscillations. Some examples: a child swinging on a swing after being pushed once. Once the push is applied, the swing continues to oscillate back and forth due to the own restoring force without the need for further external force. Characteristics are given occurs after the system is displaced and released. The second one, the system vibrates with its natural frequency. The third one, no continuous external force is acting on the system during the oscillation. The amplitude of vibration gradually decrease over time due to damping. जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या करेगा, ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा ओवर टाइम ड्यू टू डैम्पिंग के कारण. फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड आर गिवन. टी इज इक्वल टू 2πm के. टी किसके इक्वल आ जाएगा, 2πm के इक्वल आ जाएगा. टी इज आवर टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन, एम इज मास एंड के इज स्प्रिंग कॉन्स्टेंट. क्लियर. द सेकेंड पॉइंट, फोर्स्ड वाइब्रेशन. फोर्स्ड वाइब्रेशन क्या होती है? फोर्स्ड वाइब्रेशन ऑक्यर व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स कंटिन्यूअसली एक्ट्स ऑन ए सिस्टम. जो फोर्स वाइब्रेशन होगी, जब फोर्स किया जाता है, फोर्स लगाया जाए किसी, जिसके कारण, अगर फोर्स लगाने के कारण जो वाइब्रेशन आ रही है, डेट इज नोन एज फोर्स्ड वाइब्रेशन. फोर्स्ड वाइब्रेशन ऑक्यर्स व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स कंटिन्यूअसली एक्ट ऑन ए सिस्टम. जब एक्सटर्नल फोर्स कंटिन्यूअसली एक्ट करेंगे किसी सिस्टम पे, डेट इज नोन एज फोर्स्ड वाइब्रेशन. दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशन इज सस्टेन्ड बाय द कंटिन्यूअस इनपुट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स. इस तरह की जो हमारी वाइब्रेशंस होंगी इस टाइप की, वो सस्टेन्ड करेंगी बाय द कंटिन्यूअस इनपुट ऑफ एनर्जी के कारण. एग्जाम्पल आर गिवन एज अ कार शॉक absorber vibrating when the car travels over pumps. The external force is the interaction between the car's wheels and the bumps, which keep the shock absorber oscillating. Characteristics are given as the vibration is driven by an external force. Second one, the system may oscillate at the frequency of external force. The third one, not necessarily in its natural frequency. Third one, the amplitude of vibration is influenced by the magnitude of external force. एम्पलीट्यूड होगा वो किससे वाइब्रेट करेगा, एक्सटर्नल फोर्स के मैग्नीट्यूड से वाइब्रेट होगा. इक्वेशन दे रखी है मोशंस की फॉर फोर्स्ड वाइब्रेशन की, डेट इज एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट कोस ओमेगा टी. एम क्या था, एम हमारा मास था. सी क्या था, डैम्पिंग कोफिशिएंट था. के क्या था, स्प्रिंग कांस्टेंट था. एफ क्या था, एफ नॉट हमारी एम्पलीट्यूड था किसका, एक्सटर्नल फोर्स का. ओमेगा इज अवर एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टी इज अवर टाइम. द थर्ड, that is resonant vibration. Now we will discuss about the resonant vibration. Resonant vibration, here resonant occurs when the frequency of external forcing function matches the natural frequency of a system, causing the amplitude of vibration to increasing dramatically. This can lead to destructive result. ये किसको lead करेगी, destructive result को lead करेगी if the system is not designed to handle the increased amplitude. Example, a singer breaking a glass with their voice. सिंगर है जो ब्रेक करता है ग्लास को अपनी वॉइस से. द सिंगर जनरेट ए साउंड वेव. तो सिंगर क्या करेगा, सिंगर साउंड वेव को जनरेट करेगा एट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्लास पे, क्योंकि causing it to resonate and shatter. Characteristics are given as occurs when the driving frequency matches the natural frequency. ये कब occur करेंगे, जब ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, मैच करेगी किसको, नेचुरल फ्रीक्वेंसी को, किसकी, सिस्टम की. दूसरा, it leads to large oscillation and can cause damage
ये किसको लीड करेगी, लार्ज ऑसिलेशन को लीड करेगी और क्या कर सकती है, किसका कारण बन सकती है, डैमेज का, इफ़ नॉट कंट्रोल्ड, अगर कंट्रोल ना किया जाए। थर्ड वन, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बिकम वेरी लार्ज, जो एम्पलीट्यूड होगा वाइब्रेशन का वो क्या बन जाएगा, बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगा, ड्यू टू कॉन्टिन्यूस एडिशन ऑफ एनर्जी, किसके कारण, कॉन्टिन्यूस एडिशन ऑफ एनर्जी के कारण, एट द सिस्टम्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला फॉर रेजोनेंट कंडीशन, फॉर्मूला है जो रेजोनेंट कंडीशन का, आर गिवन एज फॉर रेजोनेंस टू ऑकर द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एफ, जो फ्रीक्वेंसी होगी किसी एक्सटर्नल फोर्स एफ की, मस्ट बी इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, वो किसकी इक्वल होगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी। ठीक है, एफ किसके इक्वल होगा, एफ नॉट के इक्वल आएगा। एफ इज आवर फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स और एफ नॉट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम। क्लियर। एग्जाम्पल ऑफ रेजोनेंस इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग के अंदर एग्जाम्पल हमने स्टडी करने हैं किसके, रेजोनेंस की। क्लियर। ए बिल्डिंग शेकिंग ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, एक बिल्डिंग है जो शेक करती है ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक ड्यू टू रेजोनेंस विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर, किसके कारण, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर के कारण। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक मैचेज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी अर्थक्वेक की वो मैच करती है किससे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बिल्डिंग से, द ऑसिलेशन कैन बिकम सो लार्ज, ऑसिलेशन बहुत ज़्यादा लार्ज हो सकता है, दैट दे कैन कोज स्ट्रक्चरल फेलियर, उसको हम स्ट्रक्चरल फेलियर भी बोल सकते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट दीज थ्री काइंड्स ऑफ vibration, in which first one is free vibration, second one is forced vibration, and the third one is resonant vibration. I hope all of you are enjoying this lecture series. Thank you to all of you for watching this video.